ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਰਾਤ ਚੋਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਰਾਂ ਫੜਿਆ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੰਮੇ ਪਾਏ। ਇਹਨੇ ਲਾ ਦੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ, ਰਾਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ये इस तरह की कुछ हरकतें आपके साथ की हैं इसने? ਮੰਮੀ ਅੱਬੇ ਹਰੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। मैं इस वक्त कोट राधा किशन में मौजूद हूं। मेरे साथ एक मासूम लड़की मौजूद है जो अपने भाई के घर जा रही थी और फिर रास्ते में उसे एक मोहल्ले के उबाश एक आवारा गर्द इंसान ने इसको ज़बरदस्ती पकड़ा और खाली प्लॉट में ले जाकर इसके साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती की। इसने किस तरह ख़ुद को बचाया, इस लड़की का दिमागी तवाज़न भी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे जो हमारे जो बच्चे होते हैं या ऐसे स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनको किसी किस्म के जो इस तरह के आवारा नौसरबाज लोग होते हैं वो अपनी हवस का निशाना बनाना आसान समझते हैं। इस लड़की से बात करते हैं और इससे ये पूछने की कोशिश करते हैं कि वो शख्स कौन था और उस वक़्त आप कहाँ जा रही थी जिस वक़्त उसने आपको ज़बरदस्ती पकड़ा, और फिर उसके बाद उसने क्या कुछ किया। इसी की ज़ुबानी जानते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? सिद्धरा बीबी। सिदरा, आप उस दिन कहाँ जा रही थी? अब्दुल्ला के घर। अब्दुल्ला कौन है? आबद मेरा भरा। अच्छा, भाई के घर जा रही थी। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था? कहाँ से उसने पकड़ा था आपको? मैं जानती भी हाँ कि खाली परात चों ने फड़िया मैनू, मेरी बांह फड़िया, मेरे बारह फड़िया, लिजा के उन्हें मैनू रम्मे पाया। अच्छा, उन्हें मेरे नाल गंदे जास्ती की, जास्ती करके तो कहना तेन तो राग हो जाएगा, तेन मैं ब्याह करा। अच्छा, उन्हें जबरदस्ती तेनों फड़ के लिजा के प्लाट दे विच लिजा के उन्हें ज्यादती की थी। उत्तो कहना तेन तो राग हो जाएगा, तो मेरे नाल ब्याह करा रहे। उत्ते ने मेरे कपड़े भी पार दिते ने। सिदरा, तुम्हारी शादी भी हुई है? शादी हुई। तो शोहर किधर है आपके? काम पर। अच्छा, उसने फिर आपको ये कहा कि जी तुम्हारी तलाक हो जाएगी तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पहले भी ये इस तरह की कुछ हरकतें आपके साथ की हैं इसने? ਮੰਮੀ ਅੱਬੇ ਹਰੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਸਤਰ ਉਹਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? पहले एक दफ़ा किया था। अच्छा, उस दिन फिर जब आप ने वहाँ आपको प्लॉट में लेके गया था तो आपके इसने कपड़े उतारे, ज़बरदस्ती उतारे थे? तो आपने मना नहीं किया, रोका नहीं उसे? मैंने आके मैं नहीं ला रहे, मेरे कपड़े आप लाए ने, मेरे कपड़े लाए, रास्ती करन लग पिया। अच्छा, मेरा भरा, मैं चीख मारी, मेरा भरा यासमीन उत्तों आए ने, वेखन लग मेरे उत्तों मारदा आ गई है। ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਵੀ, ਭਾਬੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਉਤਰੇ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਪਾਗ ਚੜਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ? ਨੱਸ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਾਰ ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਾ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਸੀ? ਘਰ ਮੈਂ ਆਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਆ ਗਿਆ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਰਾਤ ਨੇ ਮਾਰੀ ਵੀ। ਹਾਂ, ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਜ਼ਾ ਬਰੀ ਮੇਰੇ। ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀਪੁਰ ਸੇ ਨਾ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਮਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? मरने देंगे सजा। आप इसकी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्ची किस हद तक डिप्रेशन का शिकार है और मेंटली तौर पर ये अपसेट है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेंटली तौर पर ये लड़की नॉर्मल नहीं है। और ऐसे अफराद और इस लड़की के साथ इससे पहले भी वो बारहा कितनी बार अपनी हवस का निशाना बना चुका है, लेकिन इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ सज़ाएँ नहीं होती, इन मुल्ज़मान को सज़ाएँ नहीं दी जाती। वो इसलिए नहीं दी जाती कि जब हमारी पुलिस पैसे लेकर बिक जाती है तो फिर ऐसे मुल्ज़मान दंदनाते फिरते हैं और फिर हमारी बहनें बेटियां अपनी इज़्ज़तें लुटाती रहती हैं। आपने अपनी बहनों बेटियों की हिफाजत खुद करनी है, क्योंकि इस तरह के दरिंदे हर गली मोहल्ले और चौक में दंदनाते फिरते हैं और जिनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारा कानून इस तरह का बन चुका है और हमारी पुलिस माशाल्लाह से इतनी काबिल है कि वो मुल्ज़मान को सज़ा दिलाने के बजाय ऐसे गरीब लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करती हैं और उन पर दबाव डाला जाता है कि आप सुलह कर लें। इनका मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता था और शायद इसलिए नहीं किया जा रहा था क्योंकि इनके पास पुलिस को पैसे देने के लिए नहीं थे, और किसी अल्लाह के नेक बंदे के पास जब इनके साथ होने वाली ज़्यादती की इतला मिलती है और वो शख्स जब पुलिस एहलकारों को दबोचता है, उनको पकड़ता है, उनसे सवाल करता है कि आप इस दरिंदगी का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया करते, तो फिर उसके बाद ज़ाहिरी बात है पुलिस को भी फिर कागज़ी कार्रवाई करना पड़ती है। तो पुलिस ने कागज़ी कार्रवाई करते हुए एक सादा पेपर, मैं तो इसे सादा पेपर ही कहूँगा क्योंकि जब जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी तो वो सादा पेपर ही होता है। मुकदमा तो इनका दर्ज हो चुका है, लेकिन मुल्ज़म अब भी दंदनाता फिरता है, इनको धमकाता है कि अगर आपने अपना मुकदमा वापस ना लिया, आपके साथ बार बार इसी तरह ज़्यादती करूँगा, आपकी बहन के साथ भी इसी तरह करूँगा, आपको वहाँ पर ला के मार दूँगा जहाँ आपको पानी तक नहीं मिलेगा। लेकिन आखिर कब तक हमारी बहनें बेटियां अपनी इज़्ज़तें लुटाती रहेंगी? आपसे गुजारिश है कि इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो भी इनकी कोई सरपरस्ती कर रहा है उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, ख़ासकर इस मुल्ज़म के ख़िलाफ़, ताकि आइंदा किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त की पामाली ना कर सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।